Hey guys, welcome back to my YouTube channel Future Banker IVA. So this is the part 5 of static banking awareness, and today we're gonna study about money transfer system. Okay, so the last we covered the banking codes. Okay, so without wasting any more time, let's come to the video. Okay, so today we're gonna study about money transfer system. So there are two types of money transfer system. The first one is NEFT, National Electronic Funds Transfer System, and second one is RTGS. Okay, real time gross settlement. So we're gonna study about NEFT. Okay, so there is no limit either minimum or maximum on the amount of funds that could be transferred. So नेफ्ट में कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं होती जो कितना मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ओके सो नाउ वी गोना स्टडी अबाउट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस. सो रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम, मतलब उसी वक्त एट द टाइम इसमें मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ओके, दे आर रिसीव रेदर देन एट सम लेटर टाइम. ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ऑकर इंडिविजुअली. ओके, द मिनिमम अमाउंट इज़ 2 lakhs. तो इसकी मिनिमम अमाउंट है वो 2 lakhs है. तो इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 lakhs तो होनी चाहिए. ओके, now we're gonna study ATMs in India. Okay, so the full form of ATM is automated teller machine. Okay, and NFS, so the NFS, National Financial Switch, is the largest network of shared ATMs in India. So जो National Financial Switch है वो largest network है जो ATM share करता है इंडिया में. Okay, so it is designed, developed and deployed by the Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT, in 2004. Okay, and it is run by NPCI, National Payment Corporation of India. Okay, the first ATM in India was established in 1987 by HSBC. The full form of HSBC is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Okay, in Mumbai. In 1997, the Indian Banks Association (IBA) set up Swadhan, the first network of shared ATMs in India, managed by ISC, means India Switch Company. Okay, so the first ATM जो पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट ATM था वो आया था दिसंबर 1972 में बाय यूके, एंड देन आफ्टर इंडिया में आया था इन 1990s. ओके, सो द फर्स्ट ATM था वो इंडिया में आया था 1987 में बाय HSBC इन मुंबई में. उसके बाद 1997 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने स्वदान सेट किया, जो फर्स्ट पहला नेटवर्क था जो ATM शेयर करता था इंडिया में, और ये मैनेज किसने किया? इंडिया स्विच कंपनी ने. ओके, so there are some types of ATMs, so we're gonna study that. The first one is bank ATM. For example, SBI ATM, ICICI ATM and HDFC ATM, जो भी ATMs होते हैं हमारे बैंक्स में वो. The second one is brown label ATM. So what is brown label ATM? For example, when bank outsources the ATM operations to a third party, it is called brown label ATM. They have logo of the bank. मतलब जो बैंक है वो उनको परमिशन देता है थर्ड पार्टी को वो ATM ओपन करने का, लेकिन वो बैंक का लोगो रहता है उनके पास. ओके, वो बैंक का लोगो लगाते हैं. ओके, द थर्ड वन इज़ वाइट लेबल ATM. सो फॉर एग्जाम्पल, दे आर ओन बाय नॉन बैंक एंटिटीज़. They have no logo. RBI gave them permission to open ATMs. First company was Tata Communications Payment Solution, brand name IndiCash, WLA Muthoot Finance and Prism Payments. Okay, so जो white level ATMs हैं वो नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा चला यूज़ किया जाता है, और इनका पास कोई भी लोगो नहीं होता, बट RBI ने परमिशन दी होती है कि ATMs ओपन करने के लिए. ओके, सो पहली कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस थी. ओके, सो वी आर गोना स्टडी अबाउट कार्ड्स. ओके, टाइप्स ऑफ कार्ड्स. So there are some type of cards: debit cards, credit cards, prepaid cards. Okay, what is debit card? Debit cards are issued by banks and are linked to a bank account. Debit card जो हैं वो बैंक इशू करता है और ये बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं. ओके, सेकंड वन इज़ क्रेडिट कार्ड्स. तो क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड बाय बैंक्स और अदर एंटिटीज़ अप्रूव्ड बाय RBI. जो क्रेडिट कार्ड्स है वो बैंक या अदर एंटिटीज़ अप्रूव करती हैं, अदर एंटिटीज़ इशू करती हैं, और ये RBI ने अप्रूव किया है. मतलब क्रेडिट कार्ड में हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं. मतलब हमने लोन एक तरीके से लोन लिया होता है बैंक से, जो हम बाद में पे कर सकते हैं बैंक्स को या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको. ओके, सो द थर्ड वन इज़ प्रीपेड कार्ड्स. तो प्रीपेड कार्ड्स इशूड बाय द बैंक्स और नॉन बैंक्स. सच कार्ड्स सच एज इंटरनल वॉलेट्स, पे वाउचर. जो भी हम अमेजन और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो हमें जो वाउचर्स मिलते हैं उनको हम प्रीपेड कार्ड्स कहते हैं. ओके, सो वी आर गोना स्टडी अबाउट सम रिस्क, जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिस्क होते हैं कुछ. ओके, सो रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर. द फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट रिस्क. सो व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क? इट इज़ द रिस्क दैट अराइजेज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स बाय द बोरोवर्स. ओके, सो ये रिस्क तब होता है जब भी कस्टमर्स हैं वो बैंक्स को लोन पे नहीं करते, तो ये क्रेडिट रिस्क बैंक में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके,
Okay, second one is market risk. तो market it arises due to the factors of affecting the overall performance of the financial market. Okay, जब पूरे financial market की overall performance में कुछ changes आते हैं, कुछ तो उनकी वजह से मार्केट रिस्क होता है. ओके, सो मैकेंजी डिफाइंस मार्केट रिस्क ऑफ लॉसेज इन दी बैंक ट्रेडिंग बुक ड्यू टू चेंजेस इन इक्विटी प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी प्राइस एक्सेट्रा. इन सब में जब भी कुछ चेंजेस आते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो मार्केट रिस्क आता है. ओके, मार्केट रिस्क बढ़ जाता है. थर्ड वन इज़ ऑपरेशन रिस्क. ओके, इट ऑकर्स एज द रिजल्ट ऑफ अ फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस इन दी बैंक्स डे टू डे एक्टिविटीज़. ओके, जब बैंक्स में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनमें अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो वो ऑपरेशन रिस्क कहलाता है. ओके, सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग पेमेंट्स क्रेडिटेड टू द रॉन्ग अकाउंट और एग्जीक्यूटिंग एन इनकरेक्ट ऑर्डर वाइल डीलिंग इन दी मार्केट. ओके, तो जब भी हम रॉन्ग पेमेंट्स हो जाती हैं और जो भी मार्केट में क्या बोलते हैं रॉन्ग डीलिंग हो जाती है उसको. ओके, तो फोर्थ वन इज़ लिक्विडिटी रिस्क. ओके, इट इज़ द रिस्क दैट द बैंक विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस इफ द डिपोजिटर्स कम इन टू विदड्रॉ देयर मनी. ओके, सो ये लिक्विडिटी मतलब पैसे की कमी हो जाना, बैंक में पैसे की कमी हो जाना. अगर जो डिपोजिटर उनका पैसा ले जाते हैं, अगर जो डिपोजिटर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम बैंक में अपना पैसा वापस ले आते हैं और बैंक के पास पैसा ना हो तो उसको हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं. ओके, मतलब बैंक में लिक्विडिटी रिस्क है. फिफ्थ वन इज़ बिजनेस रिस्क. और इट इज़ अ रिस्क दैट अ गिवन बैंक में चूज़ द रॉन्ग स्ट्रेटजी. एज रिजल्ट ऑफ दिस रॉन्ग चॉइस द बैंक में सफर लॉसेज एंड एंड अप बीइंग एक्वायर्ड और मे सिंपली कोलैप्स. ओके, तो जब ये रिस्क तब होता है जब बैंक कोई गलत डिसीजन लेता है जिसकी वजह से बैंक लॉस में चला जाता है या फिर वो कोलैप्स हो जाता है. ओके, the sixth one is reputational risk. It is extremely important intangible asset in the banking business. Reputational risk is a threat or danger to the good name of business. और इसमें जब बैंक्स की इमेज पर कुछ भी इमेज जब अफेक्ट होती है सो ये रेपुटेशनल रिस्क कहलाता है. ओके, तो सेवेंथ वन इज सिस्टमिक रिस्क. ओके, सो इट इज़ द रिस्क दैट डजंट अफेक्ट अ सिंगल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट इट अफेक्ट्स द होल इंडस्ट्री. ओके, जो सिस्टमेटिक रिस्क है ये सिर्फ बैंक इंस्टीट्यूशन को नहीं करता, ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है. Now we're gonna study about and the last one, moral hazard. Okay, so it is a risk that occurs when a big bank or large financial institutions takes risk knowing that someone else will have to face the burden of the risk. Okay, so ये रिस्क जब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है वो कोई बड़ा डिसीजन लेती है पर उसका जो इफेक्ट्स हैं वो उनको नहीं देखने पड़ेंगे, किसी और को देखने पड़ेंगे. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड moral hazard. Okay guys, so this all for the today, and we're gonna cover some more points in the next video. So yeah, thank you guys.